I am going to teach you the first lesson of your prose. The name of the first lesson is A Letter to God, written by Z.L. Funes. It means it has been written by Z.L. Funes. In this lesson, the writer has told about a farmer named Lencho. About the story, they say faith can move mountains. They say, it means people say that faith can move mountains. It means even faith can move mountains from its place. But what should we put our faith in? This is the question. This story delicately means politely, vinamrata se, poses. Lencho is a farmer who writes a letter, जो एक पत्र लिखता है to God. When his crops are ruined, it means when his crops are totally destroyed. At that time, in the despair, he wrote a letter for asking help from God. Asking for 100 pesos. Does Lencho's letter reach God? Does God send him the money? Think what your answers to these questions would be. And guess how the story continues before you begin to read it. The house. The writer says the house. It means the house in which Lencho used to live. The only one in the entire valley. There was only one house that was located on the crest of a low hill. From this height, इस ऊंचाई से one could see, anyone can see the river and the field of ripe corn, dotted with the flowers, फूलों से युक्त, फूलों से भरा हुआ. that always promised, जो हमेशा वादा करते थे a good harvest. It means after watching the crops, it was hoped that the crop would be good this year. The only thing the earth needed was a downpour, heavy rain, or at least a shower. A shower means light rain, हल्की वर्षा. Throughout the morning, सुबह से, from morning, Lencho, who knew his fields intimately, जो जानता था his fields, अपने खेत को intimately, निकटता से, had done nothing. He had done nothing. उसने कोई कार्य नहीं किया था. Else but the sea, the sky towards the northeast, बल्कि उत्तरी और पूर्वी दिशाओं से आने वाले बादलों को ही लेंचो देखता रहा. Now we are really going to get some water, woman. He said to his wife. Now we are really going to get some water, woman. Hey प्रिय, निश्चित रूप से, certainly we are going to get some water. निश्चित रूप से अब हमें कुछ जल मिलने वाला है. It
means it may rain. It may rain. The woman who was preparing supper replied. वह महिला यानी लेंचो की पत्नी ने लेंचो की पत्नी ने जो शाम का भोजन पका रही थी, उसने उत्तर दिया, Yes, God willing. Yes, God willing. यदि ईश्वर ने चाहा. The older boys were working in the field. बड़े लड़के, लेंचो के बड़े लड़के खेतों में कार्य कर रहे थे. While the smaller ones, जबकि छोटे बच्चे playing near the house, घर के निकट खेल रहे थे. Until means जब तक कि ना, the woman called to them all, और तब तक वो बच्चे खेलते रहे जब तक कि उस महिला ने उन सबको बुलाया नहीं. Come for dinner, रात्र के भोजन के लिए. It was during the meal, भोजन के दौरान, just as लेंचो had predicted, भोजन के दौरान जैसा कि लेंचो ने had predicted, भविष्यवाणी किया था, had told, big drops of rain, वर्षा की बड़ी बड़ी बूंदें began to fall, गिरने लगी. In the northeast, उत्तरी और पूर्वी दिशाओं से huge mountains of cloud, बादल के बड़े बड़े पहाड़, huge mountains of clouds, बड़े पहाड़ जैसे बादल could be seen, देखे जा सकते थे. Approaching means coming, आते हुए. The air was fresh, वायु, हवा, fresh. The air was fresh, हवा ताजी थी. The air was fresh and sweet, हवा ताजी और सुहावनी थी. The man went out for no other reason than to have the pleasure of feeling the rain on his body. feeling. वो व्यक्ति ने लेंचो किसी अन्य कार्य से बाहर नहीं गया, बल्कि वर्षा का आनंद, सुहावनी वर्षा का आनंद अपने शरीर पर लेने के लिए गया. And when he returned, he exclaimed, जब वो लौटा, when he came back, he shouted with joy. जब वो बाहर से लौटा तो he shouted with joy, वो प्रसन्नता से चीखा. These are not raindrops falling from the sky. These are not raindrops falling from the sky. ये आकाश से गिरती हुई वर्षा की बूंदें नहीं हैं. They are new coins. अरे नए सिक्के हैं. The big drops are 10 cent pieces. बड़ी बूंदें जो हैं वो 10 सिक्के के बराबर हैं. And the little ones are 5. छोटे सिक्के जो हैं वो 5. छोटी बूंदें जो हैं, those are just like 5 cent pieces. With a satisfied expression, अंतरात्मा में संतोष की भावना लिए हुए, he regarded, उसने देखा, the field of ripe corn, पकी हुई अनाज की फसल को, खेत को, with its flower, पुष्पों से, फूलों से, draped in curtain of rain, जो वर्षा की बूंदों से ढके हुए थे. But suddenly, अचानक, a strong wind, एक तेज हवा, began to blow,
बहने लगी एंड along with the rain, वर्षा के साथ ही साथ very large hailstones began to fall, वर्षा के साथ ही साथ बड़ी बड़ी बूंदें, with rain very large hailstones ओले पत्थर began to fall, गिरने लगे। These truly did resemble new silver coins, ये बूंदें सचमुच में नए सिक्के के समान दिखाई पड़ती थी। The boys exposing themselves to the rain, बच्चे वर्षा बिना वर्षा की परवाह किए हुए, बिना वर्षा की परवाह किए हुए बच्चे बाहर चले गए। रैन आउट themselves to the rain out to collect the frozen pulse, उस जमी हुई पल्स मोतियों, यानी the hailstones were just like as a pulse for those students, for those boys. It is really getting bad now, सचमुच में बहुत बुरा हो रहा है। Exclaimed the man, वो व्यक्ति चीखा चिल्लाया। I hope, मैं आशा करता हूँ, it passes quickly means शीघ्रता से, adverb, quickly works as adverb in this sentence. It did not pass quickly, लेकिन वर्षा का गिरना, बरसात का गिरना, वर्षा का होना शीघ्रता से समाप्त नहीं हुआ। For an hour, 1 घंटे तक, the hail rained on the house, 1 घंटे तक अनवरत घर में, बगीचे में, पहाड़ी क्षेत्रों में, अनाज के खेत में, फसल ऑन द होल वैली, पूरे क्षेत्र में, पूरी घाटी में, द फील्ड वॉज वाइट, धरा इस तरह से सफेद हो गई, एज इफ कवर्ड विथ साल्ट, धरा इस तरह से सफेद हो गई जैसे कि देखने के बाद ये लगता था एज इफ इट वर कवर्ड विथ साल्ट, जैसे कि धरातल नमक से ढक गया हो, नमक से कवर हो गया हो, ढक गया हो। Not a leaf remained on the trees, not a leaf remained on the trees, पेड़ों पर, वृक्षों पर एक भी पत्ती बची नहीं। The corn was totally destroyed, अनाज यानी फसल पूर्णतः नष्ट हो गई। The flowers were gone from the plants, पुष्प पौधों से अलग हो गए, पुष्प पौधों से हट के चले गए। लिंचोज सोल वॉज फिल्ड विद सैडनेस, लिंचो की अंतरात्मा कष्ट से, दुख से भर गई। When the storm had passed, जब तूफान समाप्त हुआ, तूफान का अंत हुआ, he stood in the middle of the field, वह यानी लिंचो stood in the middle of the field, लिंचो अपने खेत के मध्य में खड़ा हो, and said to his sons, और अपने पुत्रों से कहा, a plague of locust would have left more than this, एक टिड्डी दल भी इससे ज्यादा शेष छोड़ देता, यानी यदि टिड्डियों का दल हमारी फसल पर आक्रमण करता, तो he would have left more than this, तो वह भी
इससे अधिक छोड़ दिया होता। द हेल हैज लेफ्ट नथिंग, ओले ने कुछ छोड़ा नहीं है। दिस ईयर वी विल हैव नो कार, इस वर्ष हमें अनाज नहीं मिलेगा। दैट नाइट वॉज ए सोरोफुल वन, वो रात्रि उस परिवार के लिए दुखपूर्ण रात्रि थी। ऑल आवर वर्क फॉर नथिंग, हमारा सारा कार्य फॉर नथिंग, व्यर्थ हो गया, नष्ट हो गया। देयर इज नो वन हु कैन हेल्प अस, कोई ऐसा नहीं है हु कैन हेल्प अस, जो हमारी मदद कर सकता है। वी शैल ऑल गो हंग्री दिस ईयर, इस वर्ष हम लोग भूखे रह जाएंगे। बट इन द हार्ट्स ऑफ ऑल who lived in that solitary house in the middle of the valley, but in the hearts of all, लेकिन जो सबके हृदय में रहता है, who resides in the heart of all, सबके हृदय में कौन रहता है? God resides in the heart of all, ईश्वर सबके हृदय में रहता है। but in the hearts of all, लेकिन जो सबके हृदय में रहता है, who lived in that solitary house, Lencho lived in that solitary house, who lived in that solitary house in the middle of the valley, वह व्यक्ति जो in the middle of the valley, घाटी के मध्य एकाकी आवास में घर में रहता था, उसके मस्तिष्क में, उसके मानस पटल पर इस तरह का विचार आया कि बट इन द हार्ट्स ऑफ ऑल, जो सबके हृदय में रहता है, वॉज ए सिंगल हो हेल्प फ्रॉम गॉड, उसके मानस पटल पर यह बात, उसके दिमाग में यह बात कौंधी कि जो सबके हृदय में रहता है यानी ईश्वर, I shall go to him, I shall send a letter to him to ask for money. Don't be so upset, इतना परेशान मत हुई। Even though this seems like a total loss, यद्यपि ये प्रतीत होता है, seems प्रतीत होता है like a total loss, loss माने क्षति, total माने संपूर्ण, ऐसा लगता है कि सब कुछ नष्ट हो गया है। रिमेंबर, ध्यान रखो, नो वन डाइज ऑफ हंगर, बट रिमेंबर इट, नो वन डाइज ऑफ हंगर, कोई भूख से मरता नहीं है। दैट्स व्हाट दे से, क्या लोग क्या कहते हैं? नो वन डाइज ऑफ हंगर, कोई भूख से नहीं मरता है। ऑल थ्रू द नाइट, पूरी रात्रि लेंचो थॉट, लेंचो ने विचार किया, ओनली ऑफ हिज वन होप, लेंचो ने केवल एक आशा के विषय में विचार किया, द हेल्प ऑफ गॉड, ईश्वर से मदद। हुज आइज, जिसकी आंखें, यानी किसकी आंखें? परमात्मा की आंखें। एज ही हैड बीन इंस्ट्रक्टेड, जैसा कि लेंचो को एज इट हैड बीन टॉट लेंचो, जैसा कि लेंचो को बताया गया था, पढ़ाया गया था, निर्देशित किया गया था। एज ही हैड बीन इंस्ट्रक्टेड, सी एवरीथिंग, ईश्वर की आंखें सब कुछ देखती हैं। इट हैड बीन टॉट, इट हैड बीन इंस्ट्रक्टेड टू लेंचो इवन व्हाट इज डीप इन वंस कंसाइंस, ईश्वर की आंखें यहां तक देखती हैं कि लोगों के अंतःकरण में, लोगों के हृदय में क्या है, लोगों की अंतरात्मा में क्या है, व्हाट इज गोइंग ऑन इन द सोल ऑफ मैन, इट इज ऑल्सो सीन बाय द आईज ऑफ गॉड। लेंचो वॉज एन ऑक्स ऑफ ए मैन, लेंचो वॉज एन ऑक्स ऑफ ए मैन, लेंचो खेत बैल के समान यानी कड़ी मेहनत करता था, वर्किंग लाइक एन एनिमल, लेंचो खेत में
जानवर की तरह कार्य करता था, बट स्टिल ही न्यू हाउ टू राइट। ऑल्दो ही वॉज नॉट वेल एजुकेटेड बट ही न्यू हाउ टू राइट। यद्यपि लेंचो बहुत पढ़ा लिखा नहीं था, लेकिन फिर भी वो पढ़ना लिखना जानता था थोड़ा। द फॉलोइंग संडे, अगले रविवार को, एट डेब्रेक, सूर्योदय प्रातःकाल बेला में, ही बिगेन टू राइट अ लेटर, लेंचो एक पत्र लिखना प्रारंभ किया, व्हिच ही हिमसेल्फ वुड कैरी टू टाउन, जिसे वो स्वयं कस्बे में ले जाएगा, एंड प्लेस इन द मेल, और उसे पत्र पेटिका में डालेगा। इट वॉज नथिंग लेस देन ए लेटर टू गॉड, यह ईश्वर को लिखे गए पत्र के अतिरिक्त कुछ नहीं था। गॉड, ही रोट, गॉड इफ यू डोंट हेल्प मी, हे ईश्वर यदि आप मेरी मदद नहीं करेंगे, माई फैमिली एंड आई विल गो हंग्री दिस ईयर, तो मैं और मेरा परिवार इस वर्ष भूखों रह जाएगा। आई नीड 100 पीसोस, मुझे 100 पीसोस की जरूरत है। आई नीड 100 पीसोस in order to means लिए, so my field again, अपने खेत को पुनः बोने के लिए, and to live, रहने के लिए, until the crop comes, जब तक फसल पक नहीं जाती है तब तक जीवित रहने के लिए और फसल की पुनः बुआई करने के लिए मुझे 100 पीसोस की जरूरत है। आई नीड 100 पीसोस in order to sow my field, because the hail storm, क्योंकि ओले ने सब कुछ नष्ट कर दिया है। He wrote to God on the envelope, उसने एनवेलप लिफाफे पर ईश्वर लिखा, केवल only he wrote to God. Put the letter inside, पत्र को लिफाफे के अंदर डाल। एंड स्टिल ट्रबल्ड, थोड़ा हैरान हो गया, परेशान हो गया। वेंट टू टाउन, कस्बे में गया। एट द पोस्ट ऑफिस, कस्बे में, आफ्टर गोइंग टू द टाउन, ही वेंट इनटू द पोस्ट ऑफिस। ही प्लेस्ड ए स्टैम्प ऑन द लेटर, पत्र पर मुहर लगाया। एंड ड्रॉप्ड इट इनटू द मेल बॉक्स, और इसे, उस पत्र को पत्र पेटिका में डाल दिया। विद दीज वर्ड्स आई वांट टू स्टॉप माई